سامعین کرام، آپ لوگوں نے میری ایک ویڈیو سماعت کی ہوگی جس میں اذان قبر کے حوالے سے میں نے گفتگو کی تھی اور دیوبندی مولانا کی باتوں کا جواب دیا تھا۔ اس کے بعد پھر ان کا جواب الجواب آیا اور انہوں نے بھرپور کوشش کی کہ اذان قبر کو منع کیا جائے، ناجائز ثابت کیا جائے، بدعت ثابت کی جائے۔ پر لا الہ الا اللہ کہنے کو، اذان دینے پر، اور اذان میں بھی چونکہ کلمہ پڑھی جاتی ہے، لا الہ الا اللہ کہی جاتی ہے، لہذا اذان دو۔ کہاں کی حدیث آپ نے کہاں فٹ کر دی؟ اور اگر چلو مان بھی لیتے ہیں کہ یہ حدیث موت کے بعد کی ہے، تو موت کے بعد کلمے کی تلقین کرے نا، پورے اذان کیوں دلواتے ہیں؟ صرف لا الہ الا اللہ کہلوائے، مکمل اذان کیوں دلواتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سامعین کرام، آپ لوگوں نے میری ایک ویڈیو سماعت کی ہوگی جس میں اذان قبر کے حوالے سے میں نے گفتگو کی تھی اور دیوبندی مولانا کی باتوں کا جواب دیا تھا۔ اس کے بعد پھر ان کا جواب الجواب آیا اور انہوں نے بھرپور کوشش کی کہ اذان قبر کو منع کیا جائے، ناجائز ثابت کیا جائے، بدعت ثابت کی جائے۔ تو میں مختصراً چند باتیں عرض کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ عرض کر دوں کہ مولانا نے اپنی پوری گفتگو میں اذان قبر کے بدعت یا ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں پیش کی، لیکن اس سے بھی پہلے آپ کو میں یہ بتا دوں، اذان قبر کے حوالے سے ہم علماء اہل سنت و جماعت کا موقف یہ ہے کہ وہ سنت نہیں، واجب نہیں، فرض نہیں، وہ امر مباح ہے، جائز ہے، باعث خیر و برکت ہے۔ میں نے پہلی ویڈیو میں بھی اس طرح کی باتیں کی تھی اشارتاً مختصراً۔ آج پھر اس بات کی وضاحت کر دوں کہ ہم اس کے وجوب یا سنیت کے قائل نہیں ہیں، فرض یا واجب نہیں کہتے ہیں۔ اس پر اتنا زور بھی نہیں دیا جا سکتا ہے کہ جس کو فرض کا درجہ دے دیا جائے، اور جو لوگ اس پر زور دیتے ہیں وہ بھی غلط کرتے ہیں، لیکن اس کے باعث خیر ہونے میں، باعث برکت ہونے میں، دافع بلا ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ تو اس کے ناجائز کرنے کے لیے شرعی دلیل چاہیے، اور شرعی دلیل کے بغیر کسی بھی چیز کو ناجائز کہنا یہ بالکل غلط بات ہے، اور یہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، چونکہ شے اصلی طور پر مباح ہوا کرتی ہے جب تک اس کے ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہ مل جائے۔ تو مولانا نے پوری گفتگو میں اس بات کو کہیں ثابت نہیں کیا کہ یہ اذان ناجائز ہے یا بدعت ہے۔ اب اس کے بعد یہ بات میں بتا دوں کہ اذان دینے سے شیطان بھاگتا ہے، حدیثوں میں اس کا تذکرہ آیا ہے، اور یہ بھی تذکرہ حدیثوں میں آیا کہ جب مردے کو سوال کیا جاتا ہے تو اس موقع پر شیطان آ کر کے اسے بہکاتا ہے اور وہ گمراہ کرنا چاہتا ہے۔ اذان اس لیے دی جاتی ہے کہ شیطان اذان سے چونکہ بھاگتا ہے، لہذا شیطان بھاگے گا اور مردے کو آسانی ہو جائے گی۔ نمبر 4 میں یہ بتا دوں کہ لقنوا موتیٰ کا والد حدیث جو انہوں نے پیش کی تھی، یہ حدیث ہے، اس بات کو ہم بھی مانتے ہیں، تو اس میں انہوں نے ہدایہ کا حاشیہ پیش کیا تھا اور کہا تھا کہ ہدایہ والے کے حاشیے میں کہا گیا ہے کہ کوئی اس کو مرنے کے بعد پر محمول کرے اس کو دفع کرنے کے لیے۔ میں کہوں گا واہ صاحب، جہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی حاشیہ آپ کے کام کا ہے تو لے لیتے ہیں، جہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے کام کا نہیں ہے تو یہ کہہ کے آپ ٹھکرا دیتے ہیں کہ یہ قرآن اور حدیث نہیں۔ تو پھر آپ نے صاحب ہدایہ یعنی ہدایہ کے حاشیے کا حوالہ کیوں پیش کیا؟ وہ بھی تو دلیل شرعی نہیں ہے۔ نمبر 5 پہ کہنا چاہوں گا، متعدد حدیثوں سے ثابت کے بعد دفن حضور علیہ الصلوۃ والسلام دیر تک اپنے رکتے رہے اور مردے کی آسانی کے لیے تسبیحیں، تکبیر پڑھتے رہے۔ مثلا ابو داؤد، حاکم، بہقی میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا فرغ من دفن المیت وقف علیہ قال استغفروا لاخیکم وصلوا له بالتثبیت فانه الان یصلی، یعنی حضور السلام قبر پہ کھڑے ہو جاتے اور فرماتے اپنے بھائی کے لیے مغفرت کی دعا کرو، اور اس کو منکرین کے سوال کے جواب میں ثبات قدمی کے لیے دعا کرو، کیونکہ یہ اس وقت پوچھا جا رہا ہے، اس کو سوال کیا جا رہا ہے۔ اذان ذکر الہی ہے، اور ذکر الہی یقیناً دافع عذاب ہے، دافع بلا ہے، شیطان کو بھی بھگاتا ہے، عذاب کو بھی بھگاتا ہے، اور پھر اس کے بعد بلاؤں کو بھی ٹالتا ہے۔ تو اذان دینے میں دفع بلا بھی ہے،
शैतान के वरगलाने से बचाव और हिफाजत भी है। ये मुतादिद हदीसों में बातें आई है। एक हदीस है, मा मिन शैइन अंजा मिन अज़ाबिल्लाह मिन ज़िक्रिल्लाह, यानी कोई चीज़ अल्लाह के अज़ाब से उतना ज़्यादा नजात नहीं देने वाली है जितना कि अल्लाह का ज़िक्र नजात देने वाला है। और ज़ाहिर बात है कि अज़ान ज़िक्र इलाही है, इसमें कोई शुबह नहीं। मौलाना को अगर इसमें शुबह है तो बताएं। इस हदीस को इमाम अहमद बिन हम्बल ने मुआज़ बिन जबल से रवायत किया है। आते हैं 7 नंबर पे, अल्लामा इब्न हजर ने इसको बिदात कहा। मौलाना ने इसी को पेश किया था कि अल्लामा इब्न हजर ने इसको बिदात कहा। और जब उनको कहा गया कि अल्लामा शामी ने तो लक़नु मौताकुम को बाद दफन पर भी महमूल किया है, तो इस बात का उन्होंने रद्द कर दिया था कि अल्लामा शामी का कौल हमारे लिए दलील नहीं, हुज्जत नहीं, हुज्जत शरई नहीं। तो मैं पूछता हूँ मौलाना साहब, आप कहाँ भूल गए कि जब अल्लामा शामी का कौल आपके लिए हुज्जत शरई नहीं, तो फिर अल्लामा इब्न हजर, वो भी शाफिल मसलक, उनका कौल आपके लिए कैसे हुज्जत शरई बन गया? इस बात को भी आपको सोच लेना चाहिए। जैसे वो नहीं आपके नज़दीक हुज्जत शरई, तो ये भी तो हुज्जत शरई नहीं। उसके बाद नंबर 8 पे हम चलते हैं। अल्लामा शाफी ने अज़ान बाद दफन को सुन्नत नहीं कहा था, इसके लिए बतौर दलील अल्लामा इब्न हजर ने बिदअत वाला कौल पेश किया। ये उनका कहना है कि चूँकि अज़ान बाद दफन सुन्नत नहीं है, इसको साबित करने के लिए बतौर दलील अल्लामा इब्न हजर ने इसको बिदअत कहा। मैं समझता हूँ कि दुनिया का 8वां अजूबा है जो मौलाना साहब ने पेश किया। किसी शय का सुन्नत ना होना, उसके बिदअत होने की दलील कहाँ से बन जाएगी भाई? तब तो बेशुमार हज़ारों चीज़ें ऐसी हो जाएंगी जो सुन्नत तो नहीं है मगर वो बिदअत भी नहीं है। लेकिन आपके कहने के मुताबिक क्या होगा कि जो जो चीज़ें दुनिया में सुन्नत नहीं है वो सब के सब बिदअत हैं। तब तो अजीब सी बात होगी। मैंने कुछ मिसालें दी थी। अब फिर ये जो वीडियो आप करते हैं, वीडियो के ज़रिए जो प्रोग्राम नशर करते हैं, ये भी सुन्नत तो नहीं है। तो आप सुन्नत नहीं है तो क्या इसको बिदअत कहेंगे और अपने आप को आप बिदअती कहेंगे? अस्तग़फिरुल्लाह, बरी अक़्ल व दानिश बबायत गिरिश्त। उसके बाद मैंने मौता का 2 माना बयान किया था, एक माना मजाजी, एक माना हकीकी। इसको तो मौलाना ने रद्द ही नहीं किया। मैंने जो 2 माना बयान किया था वो गलत था या सही था? हकीकत इसका 2 माना है कि नहीं है? और जाहिर सी बात है कि आप किसी का इनकार नहीं करेंगे। तो क्या बुराई है कि माना मजाजी पे भी अमल हो जाए, माना हकीकी पे भी अमल हो जाए, मरने से पहले भी तलकीन कर दी जाए, मरने के बाद भी तलकीन कर दी जाए, तो इसमें क्या बुराई है कि जिसके लिए आप इतना परेशान हैं? अजीब सी बात है आपकी। फिर मैंने अल्लामा शामी के दौर में भी अज़ान का रिवाज बयान किया था, कमा हुवल मुअतादुल आन के लफ्ज़ से। तो इसका भी इन्होंने जवाब नहीं दिया और खामखा ये बरेलवी उलमा की तरफ इसको मंसूब करते रहते हैं, जबकि मैंने कहा था कि अल्लामा शामी के दौर में भी अज़ान थी। इसका भी इन्होंने कोई जवाब अब तक नहीं दिया। और सारी तकरीर उन्होंने लक़नु मौला के ऊपर लक़नु मौताकुम के ऊपर पूरी तकरीर ख़त्म कर दी। जब लेकिन अपने दावे के सबूत में कोई भी दलील नहीं पेश किया। मैं पूछता हूँ ये कहते क्या हैं? जायज़ कहते हैं, नाजायज़ कहते हैं, बिदअत कहते हैं? और जो भी कहते हैं उसको हदीस से इनको साबित करना पड़ेगा, चूँकि उन्होंने एक कौल कर लिया है कि हम बस अल्लामा शामी हो या दूसरे जो भी फ़ुक़हा हों, हम उनकी बात को उसी वक्त मानते हैं जब उनकी बात कुरान हदीस से मिलती हो। बात तो बड़ी अच्छी लगी होगी आप लोगों को मौलाना साहब की कि वाह, इस कदर ये कुरान और सुन्नत पे आमिल हैं कि जिनकी बात भी कुरान और सुन्नत से मिले उनकी बात को ले लेते हैं, जिनकी ना मिले उसको छोड़ देते हैं। बातें तो आपको लोगों को अच्छी लगी होंगी मगर आपको पता नहीं चला होगा कि इन्होंने बहुत ही बड़ा चोर दरवाज़ा खोला अपनी मनमानी के लिए। ये चोर दरवाज़ा इसको कह सकते हैं। गोया कि कोई भी फ़ुक़हाए किराम जो बात करेंगे तो ये कहेंगे हमारे मन के मुताबिक है कि नहीं है। हमारे मन के मुताबिक अगर है तो उसको ये मान लेंगे और कहेंगे कि कुरान और हदीस से मिलती हुई बात है। इनके मन के मुताबिक बात नहीं होगी तो ये कह के ठुकरा देंगे कि ये कुरान और हदीस से मिलती हुई बात नहीं है। वाह रे वाह, इन्होंने बहुत बेहतरीन चोर दरवाज़ा खोला अपनी मनमानी करने के लिए। ज़रा इनसे कोई पूछे कि कुरान और हदीस को समझने की सलाहियत जितनी आप में है, क्या इमाम आज़म में कम थी, इमाम शाफी में कम थी, इमाम अहमद बिन हम्बल में, इमाम मालिक में, दीगर फ़ुक़हाए किराम में, इमाम अबू यूसुफ़ में, काज़ी अबू यूसुफ़ में और इमाम मोहम्मद में, दीगर जो फ़ुक़हाए किराम अल्लामा शामी वगैरह हैं, साहिब बहरुराक वगैरह हैं,
उन लोगों से ज़्यादा ये समझने लग गए हैं। तो मनमानी कायरों ने जो दरवाज़ा खोला कि जिनकी बात कुरान और हदीस से मिलेगी उनकी मान लेंगे, जिनकी नहीं मिलेगी नहीं मानेंगे। मैं पूछता हूँ कि जनाब अली, आपका यह दावा कि कब्र पर अजान देना बिदअत है, ये कहाँ से आपने साबित किया? उसको आप कुरान और हदीस से पेश करें। अल्लामा इब्न हजर का कौल पेश न करें, चूँकि आपने खुद अपनी ज़बान से रद्द कर दिया। तो आप कोई ऐसी दलील लाइए कुरान और सुन्नत से जो इसको बिदअत होना बताए, और जब बिदअत होना नहीं साबित होता है तो फिर आपको अपने इस मज़मूमा कौल से रुजू कर जाना चाहिए। उसके बाद हम आखिर में ये कहना चाहेंगे कि कुरान और सुन्नत से कोई दलील लाकर अज़ान के मना होने पर अपनी बात को मजबूत कीजिए, और अगर कोई दलील नहीं ला पाते हैं तो ये कितनी बदनसीबी की बात है कि ज़िक्रुल्लाह से आप मना कर रहे हैं। हमारा कहना यह है कि अज़ान बाद दफन ज़िक्रुल्लाह है, और ज़िक्रुल्लाह से शयातीन भागते हैं, खैर नाजिल होता है, मुर्दे को उन्स हासिल होता है, बेशुमार खैर का दरवाज़ा खुलता है। इसलिए देने में कोई बुराई नहीं है, गरचे यह सुन्नत नहीं है मगर बाइस खैर व बरकत ज़रूर है। आपका दावा क्या है, उस दावे को आप वाज़े करें। मैं तो नहीं समझता था कि मेरी गुफ्तगू के बाद आप इसको फिर बढ़ाएंगे, लेकिन मैं देखता हूं कि आप ज़ोर दे रहे हैं। तो अब मैं आपसे पूछता हूं कि आप बाद दफन अज़ान को कहते क्या हैं? नाजायज़ कहते हैं, बिदअत कहते हैं, क्या कहते हैं? अपना मौक़िफ़ बयान कीजिए, और जो भी मौक़िफ़ आप बयान करेंगे उसको कुरान और सुन्नत से ही साबित कीजिए। किसी आलिम का, किसी फ़क़ीह का कौल हरगिज़ पेश नहीं कीजिएगा, चूँकि आपने खुद कह दिया है कि जब तक कुरान और हदीस से नहीं बात मिले तब तक हम नहीं मानेंगे। तो आप कुरान और हदीस से साबित कीजिए अज़ान कब्र बाद दफन ये क्या है, मौक़िफ़ बयान कीजिए, फिर दलील पेश कीजिए। फिर इंशाअल्लाह बहस का सिलसिला आगे बढ़ेगा। जब आपने सिलसिला आगे बढ़ा ही दिया है तो फिर बढ़ाते रहेंगे इंशाअल्लाह।